Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, let's start our next topic, that is homeostasis in man. In man, homeostasis is very well organized and best stable system of homeostasis exists in man. So, homeostasis in man carried out by skin, lungs, kidney. First of all, we will learn about homeostasis in man by skin. How skin prevent loss of water? How skin maintain homeostasis? How skin maintain water, salt, and different mineral level in animal's body, in man body. Sorry. So we will discuss these all things in homeostasis in man. And homeostasis in man by three ways: skin, lungs, kidney. And first of all, we will discuss homeostasis in man by skin. Okay. This is our internal structure of skin. ये एक क्रॉस स्ट्रक्चर है स्किन का. आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल दी अपर लेयर, ये आप खुद से भी इमेजिन कर सकते हैं कि दी फर्स्ट एक्सटर्नल अपर लेयर दैट इज मोस्ट प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव, ठीक है, दैट इज एपिडर्मिस. एपी मीन ऊपर, डर्मा मीन लेयर. द फर्स्ट लेयर, दैट इज द फर्स्ट लेयर, द मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, दैट इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस the first protective defensive layer made up of protein that prevent loss of water, ठीक है, ये क्या करती है, loss of energy and loss of water को prevent करती है. The first layer epidermis. The lowermost layer of epidermis, that is dermis. Derma या dermis, ठीक है, you can say derma or dermis. Dermis is the layer which exists between epidermis and hypodermis. ठीक है, derma means layer, and the between layer between epidermis and hypodermis, that is derma, which contain a lot number of arteries and veins. Carry out blood and arteries. But the difference between veins and arteries जो होती हैं वो साफ खून, ठीक है, साफ खून को बॉडी तक लेके आती हैं, जबकि वेन्स जो होती हैं वो गंदा खून वापसी लंग्स और फिर हार्ट तक लेके जाती हैं. लंग्स में खून जाता है, जिस तरह रिफाइनरी में कोई चीज जाती है सफाई के लिए, इस तरह लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है वाया वेन के जरिए लंग्स में जाता है. और फिर लंग्स से, यानी कि लंग्स क्या काम करते हैं, रिफाइनरी का काम करते हैं. लंग्स में जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड मूव टुवर्ड हार्ट, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. इस तरह वेन और आर्टरी का काम जो है वो ब्लड सर्कुलेशन का है. तो जो डर्मस लेयर है, ठीक है, the layer which exists between hypodermis and epidermis, which contain a large number of veins and arteries, a network of arteries and veins, ठीक है, network, एक पूरा well organized system of arteries and veins which provide oxygenated and keep away deoxygenated blood from our skin, ठीक है. The next one is hypodermis. Hypodermis contain hair bulb, hair follicles and adipose tissues. Fat tissues which contain fat. जिस तरह आपको पसीना आता है और पसीना जो है वो स्टिकी होता है, ऑयली होता है. इट्स मीन कि एडिपोज टिश्यूज यानी कि कैटाबोलाइज होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन होती है, और जो स्किन होती है उसकी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए गॉड गिफ्टेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सेबम ग्लैंड दैट एक्सक्रीट ऑयली सेक्रीशन, वो ऑयली सेक्रीशन देते हैं. इसके अलावा
एडिपोज टिश्यूज यानी कि फैट टिश्यूज भी एग्जिस्ट करते हैं इन hypodermis. There is fat tissue, adipose tissue, and different types of glands which secrete oily secretion, which keep our body, which keep our skin moist and smooth. ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होती है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं, इनकी सेक्रीशन से बॉडी रेजिस्टेंस कम होती है, बॉडी स्मूथ हो जाती है. ठीक है, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. स्वेट ग्लैंड्स भी हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं. These three layers are present in our skin: epidermis, derma, and hypodermis. The last one is subcutaneous layer. Subcutaneous layer made up of protein and subcutaneous cuticle. मतलब ये भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो बॉडी की जो स्किन की जो इंटरनल लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, तो these are all about the skin of man that maintain homeostasis यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस जो है, और डिफरेंट जो जिस तरह एक्सक्रीशंस हैं, ऑयली एक्सक्रीशन है, मॉइस्ट एक्सक्रीशन है, उसको मेंटेन करने के लिए गॉड गिफ्टेड ग्लैंड्स होते हैं. और स्किन जो है वो होमियोस्टेसिस को ऑर्गेनाइज करती है, मेंटेन करती है, स्टेबल करती है. ठीक है, द नेक्स्ट इज लंग्स एंड किडनी. Inshallah, we will discuss lungs and kidney in our next video. So this is all about the skin which are involved in homeostasis. ठीक है, which play a very best role in homeostasis and osmoregulation. Water and salt की जो regulation है उसमें skin एक जो vital role है वो play करती है. ठीक है, student, when you study एनी टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप स्किन का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो आप डायग्राम जो है वो उसको ड्रॉ करें, तो उसको लेबल करें, फिर उसके ईच पार्ट को, ठीक है, ईच पार्ट को ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करते हैं. दैट इज वेरी इजी फॉर यू, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी. एंड थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो in this way you can avail my upcoming video. Thank you so much. Jazakallah.